ہمارے 2 MPs کے گھروں میں یہ سارا توڑ پھوڑ کیا گیا سمپلی بیکاز کہ انہوں نے فرائیڈے والے پروٹیسٹ ہے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کر لیا تھا. اگر اسی طرح ہے تو جن لوگوں نے درجہ حرارت اٹھائی ہے، جو پولیس کی یونیفارم پہنتے ہیں اور اپنے پولیس کے دربار میں بھی پولیس یونیفارم میں بیٹھتی ہیں اور وہ اپنے آفس میں بھی پولیس یونیفارم میں بیٹھتی ہیں، تو اسی وہاں سے ڈائریکشن آئے گی تو پھر تو درجہ حرارت کم تو نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کو معلوم ہے آج الیکشن کمیشن کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس فکس تھا. فل بینچ الیکشن کمشنر صاحب اور 4 ممبران صاحبان نے اس کی ہیئرنگ کی ہے. آج مختصر ہیئرنگ ہوئی ہے. اس مرتبہ جو الیکشن ہم نے کروائے تھے 3 مارچ کو، اس کے سلسلے میں ہمیں ایک نوٹس آیا تھا. مجھے نوٹس آیا تھا ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور رؤوف حسن صاحب کو نوٹس آیا تھا ایز چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف. اس نوٹس میں صرف ہیئرنگ ڈیٹ کے لیے بتایا گیا تھا. اس میں جس طریقے سے لاسٹ ٹائم ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی، پہلی جب ہم نے الیکشن کروائے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک نوٹس بھیجا اور اس میں کچھ انہوں نے ڈیفیشنسی پوائنٹ آؤٹ کر لی ڈاکومنٹیشنز میں کہ یہ ڈاکومنٹس میں کوئی چیزیں کم ہیں، یہ آپ پرووائڈ کر لیں. پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹس آیا اور اس نوٹس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ کمیشن کی طرف سے اس پہ کچھ آبجیکشنز ہیں، لہٰذا آپ اس کا جواب دے دیں. اور اس کے بعد ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی. آج کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں نہ ہی کوئی ہمیں ایسا لیٹر آیا تھا جس میں ڈاکومنٹیشن میں کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہو کہ اس میں ڈیفیشنسی ہے. نہیں ہمیں الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا تھا کہ اس پہ آپ کے الیکشن پہ ہمیں کچھ آبجیکشنز ہے. آج البتہ الیکشن کمیشن نے سٹاف سے پوچھا کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، تو سٹاف نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اور کمیشن کی جو آرڈر ہے اس کی لائٹ میں ہماری کچھ آبزرویشنز ہے. میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا الیکشن کمیشن نے آبجیکشنز کا نہیں کہا، یہ کہا کہ ہمارے کچھ آبزرویشنز ہے، جس پہ کمیشن نے اپنے سٹاف کانفیڈینشیل برانچ کو ڈائریکٹ کر لیا جن کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرا پارٹیز الیکشنز کے ڈاکومنٹ ہوا کرتے ہیں کہ وہ آبزرویشنز ہمیں کمیونیکیٹ کیا جائے اگر کورنگ نوٹ. اگر وہ آبزرویشن ہمارے پاس آئے گی پھر ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن ہمیں ہیئرنگ کے لیے کون سی ڈیٹ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بعد میں بحث ہوگی. یہ تھی آج کی پروسیڈنگز. لیکن آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان تحریک انصاف کی طرح کسی نے ٹرانسپیرنٹ، اوپن اور اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن الیکشن نہیں کروائے. ہم نے اس مرتبہ بھی الیکشن کروائے. ہم نے 3 چیزوں کو مد نظر رکھا. سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا آرڈر 23/11/2023 کا، جس پہ الیکشن کمیشن نے ہمیں 20 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ انٹرا پارٹیز الیکشن کرائیں. اس آرڈر میں جو آبزرویشن دی تھی ہم نے اس کو مد نظر رکھا. پھر جو ہم نے الیکشن کروائے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو آرڈر آیا اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا. اور آخر میں سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو جو آرڈر ایشو کیا ہے، پہلا آرڈر الیکشن کمیشن کا تھا 23 نومبر 2023 کا، اور جب ہم نے 2 دسمبر کو الیکشن کیے اور وہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر 2023 کو ختم کیے، ہم نے اس آرڈر کو بھی مد نظر رکھا. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا آرڈر آلدو پشاور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اب ہولڈ کر کے کچھ آبزرویشن دے دی تھی 13 جنوری 2024 کو. ہم نے سپریم کورٹ کے اس آبزرویشن کو بھی مد نظر رکھا. ان سب کی لائٹ میں ہم نے الیکشنز کروائے. ہمارا نیا فیڈرل الیکشن کمیشن کنسٹیٹیوٹ ہوا، نیا شیڈول ایشو ہوا، پبلک نوٹس سارے پاکستان کی نیوز پیپر میں ایشو ہوئے. سارے لوگوں سے پوچھا گیا کہ جو نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے. ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی دیا، اپنے سارے سوشل میڈیا پہ بھی دیا، جس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہ شیڈول ہے.
मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊं, वो 14 बंदे जिस पे हमारा ये ऑब्जेक्शन रहा था कि वो प्लांटेड लोग थे और हमारे इलेक्शन को क्वेश्चंस कर रहे थे, उन 14 बंदों में से डिस्पाइट इतनी इंटरनेशनल पब्लिसिटी के कोई भी आगे नहीं आया कि हमारे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपना वोटर लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे भी दिया, सोशल मीडिया पे भी दिया, उसकी लाइट में ओपनली इलेक्शन हुए। केपी के और सेंट्रल इलेक्शन में कोई अपोजिंग पैनल नहीं आया क्योंकि हमारा पैनल बेस इलेक्शन है। केपी के और सेंट्रल इलेक्शन जिसमें सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होता है उसमें कोई पैनल नहीं आया। पंजाब में पैनल्स आए लेकिन एक्स्ट्रा पैनल ने विड्रॉ कर लिए, आखिरी पैनल रहा वो अनअपोज हुआ। कराची में भी पैनल आया, उसमें से एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा अनअपोज हुआ। बलूचिस्तान के 6 में से 3 पैनल ने विड्रॉ कर लिया था और फिर वोटिंग हुई थी 3 पैनल के दरमियान, उसमें से एक पैनल इलेक्ट हो गया था। हमने थ्रू आउट मीडिया के थ्रू वो सारा प्रोसेस बयान किया था। हमें उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है, किसी भी पार्टी का ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जैसा हमारा है। हम फिर भी उम्मीद किए बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये डिले बहुत हो गया, 3 तारीख का इलेक्शन था, 4 का नोटिफिकेशन था, 9 मार्च का हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो सर्टिफिकेट हमें 7 डेज में मिलना था वो सर्टिफिकेट आज भी नहीं मिला। आज इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि वो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने लाई जाए। हमारी दरख्वास्त है, अब तो बाई इलेक्शन भी हुए, अब सारे इलेक्शन जो ख़त्म हो चुके हैं कि हमें अपना बल्ले का निशान भी मिले और हमारा सर्टिफिकेट भी वापस मिले। लंदन प्लान पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है जी जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं सियासी दर्जा हरारत और मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या समझते हैं इस दफ़ा जो आपका इंट्रा पार्टी केस है, क्या पहले जैसा ही हाल होगा या आपको कुछ नरमी नज़र आ रही है, बल्ले का निशान वापस मिलता है? देखिए, मैं इस बात पे नहीं चाह रहा कि देखो ना, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें बल्ले का निशान मिलना चाहिए, लेकिन टेक इट दिस वे, जितनी ऑब्जर्वेशंस किसी पॉइंट आउट कर दी थी, जो हम एग्री नहीं करते कि वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी क्योंकि वो मिसरीडिंग ऑफ रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बावजूद हमने द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। इसलिए कानून और रूल्स, इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और हमने इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। दूसरी बात, जो इलेक्शन आप सियासी दर्ज हरारत की बात कर रहे हैं, यस, दर्ज हरारत कम होनी चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज़्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दिलवाई गई, 35 साल की सज़ा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है, कोई निशान नहीं, कोई बैंगन, किसी को चमटा, किसी को बूट, किसी को कुछ और अलाट करवाया गया। लेकिन अवाम ने अल्लाह के रहम करम से तो वो कर दी, सपोर्ट किया और 2/3 मेजॉरिटी हमारी एग्जिस्ट करती है। 180 सीट हमारे नेशनल असम्बली में है, जिसका हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए, न धरनों की तरफ गए, न इन मास रिजिग्नेशन की तरफ गए और पार्लियामान में बैठ के अपना रोल प्ले करने के लिए बैठे। लेकिन इसके बावजूद न हमें स्पेस दी जाती है, न पॉइंट और ऑर्डर पे बोलने का मौका मिलता है, बोले तो आवाज़ म्यूट की जाती है। बाक़िर अपने हकूक़ के लिए निकलें जिस तरह पूरे दुनिया में, तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। हमारे एक कैंडिडेट गुजरांवाला में जो परसों निकला, उनके 19 फैमिलीज़ के 19 घरों को तोड़ा गया, उसके अंदर गए और इतनी पुलिस गर्दी की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे 2 MPs के घरों में ये सारा तोड़ फोड़ किया गया, सिंपली बिकॉज कि उन्होंने आज जो फ्राइडे वाले प्रोटेस्ट है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। अगर इसी तरह है तो जिन लोगों ने दर्ज हरारत उठाई है, जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपने पुलिस के दरबार में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं और वो अपने ऑफिस में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं, तो इसी वहाँ से डायरेक्शन आएगी, तो फिर तो दर्ज हरारत कम तो नहीं हो सकता। देखो, एक तो सबसे पहले हमारे उसकी मीडिया सेल की तरफ से हमारा नैरेटिव इस पे आ चुका है। दूसरी बात है जो हामिद रज़ा साहब ने कहा है, उसने सिर्फ ये कहा था कि कंसिडर किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी सारी ऑप्शंस जो है वो ऑन द टेबल रखती हैं, लेकिन सो फार हमारा कोई ऐसा
ना फैसला हुआ है, न कोई इंटेंशन है कि हम रिज़ाइन कर दें या किसी और ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। हमने पार्लियामेंट में रहना है और अपने सारे जो मसाइल हैं उसका हल पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ढूंढेंगे। और यही रीज़न है कि खान साहब के सारे केसेस हम बैक टू बैक कोर्टों में कंटेस्ट कर रहे हैं और आला अदलिया में कंटेस्ट कर रहे हैं। ये सवाल ये बताएं कि इस वक्त पिछले कुछ दिनों में बार बार उन्होंने कहा कि फौज के साथ बात करने के लिए वो तैयार हैं खान साहब भी, तो उस साइड से भी कोई रिस्पांस आया है पिछले 1-2 दिन में? देखो, हमारा जहाँ तक डायलॉग की बात है तो हम बारहा कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर है नैरेटिव बिल्ड करना है, पब्लिक में जाना है, तो डायलॉग सबके साथ होना चाहिए। और उसका हम जिक्र करें कि एज़ वी स्पीक, एज़ ऑफ नाउ हमारी किसी के साथ कोई डायलॉग नहीं हो रही, और अगर कोई डायलॉग शुरू तो फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि आप लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने आप लोगों का मैंडेट चोरी किया है, उनसे बात नहीं की जा सकती है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो जिन्होंने करवाया है उनके साथ तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हम उनके साथ बात करने को तैयार है और बाकी के साथ नहीं। जहाँ तक इन 3 पार्टीज़ का ताल्लुक है तो वो हम कह रहे हैं कि देखिए, बात क्या करनी, पहले तो हमारा मैंडेट ही दे। इनके पास हमारा मैंडेट है, इन्होंने चोरी किया हुआ है, तो जो चोर है वो जब तक वो चोरी का माल वापस नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, उनके साथ क्या बात हमने करनी है? वो अपना तो पॉलिटिकल पार्टीज का हमारा इत्तेहाद बना हुआ है, तो इट इज नॉट दैट कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज नहीं कर रहे। इन 3 जिनका मैंडेट चोर पार्टीज हैं, इनके साथ हम नहीं बात वो कर। जी प्लीज, आप कुछ बता। गौर साहब, केपी गवर्नमेंट में मशाल यूसुफजई मुसलसल कंट्रोवर्सीज में आ रही है। पिछले दिनों खबर आई है कि करक में एक सरकारी महकमे की गाड़ी उसको अलॉट करवाई गई है। इससे पहले भी उनकी गाड़ी का इशू नेशनल मीडिया पर आया था। मशाल यूसुफजई के ऐसी क्या स्पेशल खिदमत है कि पार्टी ने नहीं, देखो, किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं किया करते। दूसरी बात है कि हम आपको पार्टी की पोजीशन ये ज़रूर बताते हैं, हमने ऑस्टेरिटी प्लान रखा है और ऑस्टेरिटी प्लान के पास किसी ने कोई अपना पावर और अपने पोजीशन मिसयूज़ और अब्यूज़ नहीं किया है। और इंशाअल्लाह ताला अली अमीन खान गंडापुर साहब के सरबराही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इंशाअल्लाह KPK में मिसाली हुकूमत बनेगी और मिसाली सूबा बनेगा। वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उन्होंने इस रमज़ान में भी रिलीफ पैकेज दिए इतने सख्त सिचुएशन में कि फेडरल हुकूमत जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर भी बैठी है, वो अपना शेयर भी नहीं दे रही है, ड्यू शेयर, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अली अमीन साहब की हुकूमत इंशाअल्लाह हर भरपूर कोशिश करेगी कि वो कानून के मुताबिक चलेगी, कोई मिसयूज़ अब्यूज़ पावर का नहीं होगा और इंशाअल्लाह बेहतरीन सूबा बनेगा। थैंक यू जी।